Good morning, dear students. Today we are going to start the next topic of the Indian national movement 1870s to 1947. In the previous video, I explained you about the Indian National Congress. Now, what are its objectives, how they overcome, how they came together into the whole nation. So let us discuss. It has been observed that the Congress in the first 20 years, means 1885 to 1905, they were moderates in its objectives and methods. Now you should understand the meaning of moderate. Moderate means soft-hearted. They believed in plea. They believed in pleas, request to the British government. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government. So underline the demands of the Congress in the early years of 20 years. The first demand they demanded that in the government or in the administration, Indian must be there. It means they accepted the rule of the Britishers and they demanded the government seats should be reserved for Indians also, so that in the favor of the Indians they can take the decisions. It wanted the legislative council, means in the parliament when the councils has to be formed, then Indians should also be there as a representatives, given more power to them also. Introduced in the provinces where none existed, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल में no Indian were existed, but they demanded Indian must be there because you are making the policies for India. Next demand that the Indians must be placed in high positions in the government, because they believed that Indians are also very intelligent. At the high positions, Indian must be there. For this, what they ask? They ask IAS exam, that is the civil service examination, to be held in India, not just in London. अर्लियर व्हाट हैपेंड, ये आईएएस का एग्जाम कहाँ लेते थे? लंदन में. तो लंदन के लोग ही क्वालिफाई करते थे एंड दे हैव टू बी अपॉइंट एज द सीनियर पोस्ट. सो व्हाट दे डिमांडेड कि ये जो हाई पोजीशन रैंकिंग है, इंडियन आर आल्सो कैपेबल बट दे आर नॉट एबल टू गो टू लंदन. तो आप क्या करें, ये टेस्ट भी कहाँ कंडक्ट कराएं? इंडिया में कंडक्ट कराएं. तो दीज वर द डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट leaders. The demand for Indianization of the administration were the part of a movement against racism. अब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इन्होंने डिमांड की थी एडमिनिस्ट्रेशन में? क्योंकि रेसिज्म करते थे. इल्बर्ट बिल में भी आपने देखा कि इल्बर्ट बिल जो था ब्रिटिशर्स ने डिनाई कर दिया. अगर उसमें इंडियंस होते तो इल्बर्ट बिल पास हो जाता. तो दे डिमांडेड कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की भी पोस्ट होनी चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स एट वर द मोनोपोलाइज्ड. मोनोपोलाइज का मीनिंग अंडरलाइन करो. मोनोपोलाइज का मीनिंग होता है एक अधिकार, जिसके पास सिर्फ उन्हीं के पास राइट था. वो किसके पास था? वाइट ऑफिशियल्स के पास, ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास. एंड द ब्रिटिश जनरली एज्यूम दैट द इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. रेसिज्म बिलीव करते थे ना, दे बिलीव कि इंडियन कैपेबल नहीं है, इंडियन इन पोजीशंस को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. Since Britishers officers were sending a major part of their large salaries home, Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. अब वो क्या होप कर रहे हैं कि ये जो इंडियनाइजेशन आप कर रहे हैं, अगर इंडियनाइजेशन हो गया तो हमारा जितना पैसा इंडिया से इंग्लैंड जाता है वो रुक जाएगा. कैसे बेटा? बिकॉज दोज पीपल दोज हु आर कमिंग टूवर्ड्स इंडिया, दे अपॉइंटेड एज ए हायर पोजिशंस इन इंडिया, दे आर गेटिंग मैक्सिमम सैलरीज. तो व्हाट दे विल डू? डेफिनेटली दे विल सेंड दैट मनी टूवर्ड्स देयर फैमिली मेंबर्स इन England. So this was a drain of wealth. In his book, Dadabhai Naroji also explained the drain of wealth. Drain of wealth means कि यहाँ से पैसा कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड. थ्रू ऑफिसर्स, थ्रू एक्सपोर्ट, इन एवरी वे व्हाट दे वांटेड कि इंडिया को हम और पुअर करते जाए और इंग्लैंड को और रिचर करते जाए. तो व्हाट दे डिमांडेड इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. क्योंकि न्याय कौन दे रहा था? ब्रिटिशर्स. एग्जीक्यूटिव कौन थे? ब्रिटिशर्स. सो व्हाट दे डिमांडेड कि ये सेपरेट होने चाहिए. जुडिशरी का डिपार्टमेंट सेपरेट, ऑफिसर्स का डिपार्टमेंट सेपरेट. द रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट. और व्हाट दे वांटेड, रिपील का मतलब होता है कि जब हम कोई लॉ बनाया है उसको वापस ले लो, उसकी वैलिडिटी को फिनिश कर दो. तो व्हाट दे डिमांडेड, रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट. आर्म्स एक्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. इट वॉज मेड इन 1878. एंड व्हाट वॉज दिस एक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, Indians cannot possess the arms.
and the freedom of speech and expression. Another act what they passed, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, दे हैव टुक द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द इंडियंस, सो दे वांटेड दीज एक्ट मस्ट बी रिपील. You should underline the new terms given on this page. Repeal, the meaning is to undo law to officially end the validity of something such as a law. आज की डेट में भी बेटा क्या कह रहे हैं, फार्मर्स व्हाट दे डिमांडेड, दे वांटेड द रिपील ऑफ द फार्मर्स बिल. जो इन्होंने किसानों के अगेंस्ट बिल पास किया है उसको वापस लो, ठीक है. जो 3 लॉज बनाए हैं, दे वांटेड दैट शुड बी बैक. सो सेम डिमांडेड दे वर देयर इन द फॉर्म ऑफ द रिपील. द अर्ली कांग्रेस also raised a number of economic issues. इन कांग्रेस मेंबर्स ने इकोनॉमिक इश्यूज को भी रेस किया. व्हाट वर दोज, इट डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी. इन्होंने क्या समझाया कि ब्रिटिश रूल से क्या आया हमारी कंट्री में, पॉवर्टी आई है, फेमाइंस आए हैं. फेमाइंस क्यों आए थे, क्योंकि उन्होंने कौन सी क्रॉप ग्रो करवाई थी, इंडिको. और इंडिको क्या कर रही थी बेटा, सॉइल की फर्टिलिटी को फिनिश कर रही थी. और एरिया कैसे कन्वर्ट होता जा रहा था, दैट एरिया बिकम्स द ड्रॉट प्रोन एरिया एंड इट फेमिन हैज़ वेरी कॉमन. तो इंक्रीज इन द लैंड रिवेन्यू. अब दूसरा रीज़न क्या था इकोनॉमिक इश्यूज़ के लिए में, द लैंड रिवेन्यू, क्योंकि दे हैव इंक्रीज लैंड रिवेन्यू, हैड एम्पावर्ड पीजेंट्स एंड जमींदार. जमींदार की हालत भी, पीजेंट्स की भी, सबको परेशान कर रहे थे. एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन, अब जो अनाज उगता था उसको क्या करते थे यूरोपियन, हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज बिकॉज दे एक्सपोर्ट इनटू द यूरोप. द कांग्रेस डिमांडेड, अब क्या डिमांड कर रही है, रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू को कम करें. कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाए. एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर. सो जितना पैसा है इरिगेशन पे लगाया जाए ताकि फेमाइन ना आए. इट पास्ड मैनी रेजोल्यूशंस ऑन द सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रोड. कोई रेजोल्यूशन पास की, इन्होंने सॉल्ट टैक्स लगाया. लेबरर्स की कंडीशन अब्रोड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लोगों के साथ मिसबिहेव किया जाता था. फॉरेस्ट ड्वेलर्स से उनको सफरिंग सी, उनको डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने. फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरफेरेंस करके डिस्टर्ब कर दिया, फॉरेस्ट लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने. तो ऑल दिस शोज दैट डिस्पाइट बीइंग ए बॉडी ऑफ एजुकेटेड एलाइट, क्योंकि कांग्रेस के अर्ली लीडर्स सब क्या थे बेटा, एजुकेटेड पर्सन से. एंड दे डिडंट डिमांड फॉर देमसेल्व्स, उन्होंने अपने लिए नहीं डिमांड्स की, दे डिमांडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोफेशनल ग्रुप्स, जमींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट और पीजेंट्स, सबके लिए उन्होंने डिमांड की थी. दे थॉट ऑफ ऑल. द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस. मॉडरेट लीडर्स क्या चाहते थे, लोगों को जागरूक करना. हाउ दे कैन डू दैट, विद द हेल्प ऑफ पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स, articles writing showed how British rule lead to economic ruin of the country, means drain of wealth. So they have opened their mind. Public awareness, जितना लोगों को जागरूक कर सकते थे, they have done with the help of these writing skills. They criticize British rule in their speeches. When they have to deliver any speech, they criticize and sent representatives, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया को इकट्ठा करना था इन्होंने, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सेंड करना स्टार्ट कर दिया. दे फेल्ट दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम. पर एक बात थी इन मॉडरेट्स की, दे बिलीव्ड कि ब्रिटिशर्स लोगों ने जैसे यूरोपियन कंट्रीज में फ्रीडम और जस्टिस को मेंटेन करके रखा हुआ है, सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ द इंडियंस. वो ये सोचते थे कि हम ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे, इनको रियलाइज कराएंगे तो दे विल फॉलो आवर demands. But what was necessary there was to express the demand and make the government aware of feelings of the Indians. अब ये सोचते थे कि हम ऐसे एक्सप्रेस करके गवर्नमेंट को अवेयर कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, फीलिंग्स ऑफ द इंडियंस की, इंडियंस लोग क्या सोच रहे हैं और व्हाट दे वांटेड. इट मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स. मॉडरेट लीडर्स क्या करते थे, ब्रिटिश रूल को अच्छा मान रहे थे. एंड दे सेड कि हमारी इन प्रॉब्लम्स को भी रिमूव किया जाए, हमारी इन डिमांड्स को, हमारी इन फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट दी जाए. So this was about the moderates. Next we will discuss the different role of the Congress leaders, that was the radicals.